السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز۔ اس وقت پوری دنیا میں امریکی صدارتی انتخابات کا چرچا ہے۔ بنیادی طور پر اس وقت امریکی عوام کے سامنے ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں دو صدارتی امیدوار موجود ہیں۔ اقتدار کا عمہ کس کے سر بیٹھے گا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن پاکستانی عوام میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آج کے پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اپنی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا، پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نامی ایک افریت کا بڑا چرچا ہے۔ آپ کے خیال میں موصوف جو ہیں ان کی اگر تعریف کی جائے تو کن الفاظ کا استعمال کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب مشہور ہیں کاروبار کے حوالے سے، اور اگر آپ نے ان کی تھوڑی سی اگر ہسٹری اگر آپ نے دیکھی ہو تو یہ چھوٹی ٹرم میں بڑی انویسٹمنٹ پر کئی گنا مارجن کمانے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی اس کی مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں تو انہوں نے ایسے کئی بزنسز میں اپنی شراکت داری اختیار کروائی، اس کے بعد ان بزنس کو شٹ ڈاؤن کیا جو اصل مالکان تھے چلا پڑے، ان سے انہوں نے دگنے پیسے واپس لیے اور بزنس انہیں کو واپس کر دیا۔ یہ ان کی اصل حقیقت ہے جو پچھلے وقتوں میں میری نالج میں آئی۔ تو یہ جو ان کو جو جو پارٹی جن کی طرف سے ان کو امیدوار کے طور پہ سامنے لایا گیا ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں بزنس مین کے طور پر بہت مقبول ہے، تو کیونکہ دوسری جو تنظیم تھی وہ ان پورے کے پورے سلسلوں میں پچھلے 2 الیکشن سے ہار رہی تھی، تو انہیں ایسا کوئی امیدوار چاہیے تھا جو ان کو میڈیا پہ کوریج دلوا سکے، جو ان کی بات شاید دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پہ پریزنٹ کر سکے۔ تو اس سلسلے میں جو انہوں نے شاید ان کو اپنا امیدوار بنا لیا تھا، لیکن جو معاملات اور واقعات اس کے بعد پیش آئے جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا پہ، تو ان کی خواتین کے ساتھ کچھ نازیبا قسم کی حرکات و سکنات اور ان کے خیالات کچھ خواتین کے بارے میں وہ میڈیا پر آئے۔ اس کے علاوہ یہ پہلی جو ان کی پریزیڈنشل جو ان کی کمپین تھی، جس میں پہلی ان کی ہیلری کلنٹن کے خلاف جو پہلی ڈیبیٹ تھی، اس میں بھی موصوف جو اب کوئی خاص آف کلر نظر آئے، کسی خاص اپنے خیالات کا بھرپور طریقے سے اظہار کر نہیں سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ان کا بہت زیادہ چانس ہے۔ پاکستان کو ڈو مور کے کتنے تانوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ موصوف منتخب ہو جاتے ہیں؟ اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا۔ پہلا حصہ وہ ہے جو کہ امریکن جسے کہنا ہے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، اگر یہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جیت جاتے ہیں، تو ایک تو ان کا اور ان کے حواریوں کا ایک بڑا سا ایک ٹولہ ہوگا جو ان کو بھرپور انفیکٹ جن کے لیے یا جن کی بھرپور حمایت ہے انڈیا کی طرف، تو یہ باقاعدہ اپنی تقریروں میں بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ آئی لو انڈیا، اور میں نریندر مودی صاحب سے بڑا جسے کہنا چاہیے ہے کہ ان سے متاثر وغیرہ ہوں، اس قسم کی باتیں۔ تو بہرحال یہ ایک فیکٹر تو ہے جس کا یہ کھل کر اظہار کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس بات کا بالکل کریں گے۔ لیکن ہمیں انڈیا سے اور امریکہ سے اگر اس قسم کی لابی ایگزسٹ کرتی ہے تو ہمیں آج بھی کوئی ان سے امید نہیں تھی، اور ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں بھی ان سے کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے۔ لیکن جہاں تک امریکی باشعور عوام کا تعلق ہے، تو امریکی عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ تعصبانہ، نسل پرستانہ اور اس قسم کی اسپیسیفک لابنگ والی سچویشن کو جنرک عوام کی جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے کہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ اچھا سر، ان کے سامنے جو ان کی حریف امیدوار ہیں ان کا نام ہے ہیلری کلنٹن، خاصی وسعت نظری رکھتی ہیں۔ بل کلنٹن صاحب، ان کے شوہر جو تھے مونیکا لیونسکی کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے، اس جیسے معاملے کو بھی بینگ وائف انہوں نے معاف کیا۔ اب وہ معاملہ کیا تھا وہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ایک ایسی خاتون جو اتنی وسعت قلبی کی مالک ہو، اگر وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ کتنی فراخ دلی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے گی آپ کے خیال میں؟ جس لابی سے ہیلری صاحبہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ لابی باقاعدہ صرف پاکستان کی نہیں، دنیا بھر میں تعلقات بڑے مستحکم طریقے سے لے کر چلنے کے لیے مشہور ہے، اور وہ کسی کے خلاف بھی ایک جیسے کہنا چاہیے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ لیول کا جو ہے وہ ان کا زاویہ نظر ہوتا نہیں ہے کبھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو کچھ کہا، اس سے ان کے تعصب کا واضح طور پہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ان کا انتخاب عمل میں آتا ہے تو پاکستان کو کن خطرات یا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ پہلے تو ان کا انتخاب ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو جو پاکستانی وہاں جاب کر رہے ہیں یا جو جن کی نیشنلٹی ہے، ان کے اوپر بہت مسئلہ آ سکتا ہے، اور جو پاکستان کے اور امریکہ کے ساتھ میں جتنے بھی معاہدے چل رہے ہیں وہ سب خطرے میں آ سکتے ہیں۔ پازیٹیو کیا ہے ہیلری کلنٹن کا، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی کوئی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ کیا ہے؟ ہیلری کلنٹن جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا تو وہ اس کو غلط بولتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو ایسی داعش ایسی چیزیں اور آئیں گی۔ تو وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں کو نہیں، ٹیررسٹ الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں انتخاب کیا جائے۔ داعش، طالبان، القاعدہ، یہ سب اگر برائیاں ہیں
तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी भी तो एक बहुत बड़ी बुराई है। दाइश के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, अलकायदा के लिए और तालिबान के पीछे आप हाथ धो के पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को आप वहाँ इंडिया का प्रधानमंत्री बनाते हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी सदारती उम्मीदवार है। ये किस किस्म का दौर हमें आ रहा है? मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से दाइश और अलकायदा जो है वो पैदा होती हैं, तो हमें पहले इस सियासत को इतनी गंदी तरीके से जाने से रोकना चाहिए। अगर आप मुसलमानों पे जुल्म करेंगे तो कुछ लोग आपको वापस भी वही चीज़ रिटर्न करेंगे, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, जो इनके खिलाफ बोलते हैं स्पेशली उन्हें। डोनाल्ड ट्रंप की आमद बहैसियत अमरीकी सदर पाकिस्तानियों के लिए किस हद तक पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं आप? ओवरऑल अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, और ओवरऑल दुनिया में ही मुसलमानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आमद जो है एक नेगेटिव चीज़ है। तो पाकिस्तानियों के लिए भी डेफिनेटली इसके आने से बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, लोग काम करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो उनको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम, ओवरऑल सोसाइटी में जो लोगों का एक इमेज होता है, एक इम्प्रेशन होता है, मुस्लिम्स एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न ट्रीट किए जाते हैं, तो ये चीज़ मज़ीद बढ़ेगी डोनाल्ड ट्रंप के आने से। ओवरऑल एक तरह से आप कह लें स्टेट पॉलिसीज़ इस तरह की बनाई जाएंगी जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ होंगी, और मुस्लिम्स के लिए स्पेशली पाकिस्तानीज़ के लिए एक प्रॉब्लम्स की आप कह लेंगे एक नई सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। हिलरी क्लिंटन अगर आ जाती हैं तो पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर, मुझ पर और आप पर कौन सी इनायात और नवाजिशात की बहार होने वाली है? हिलरी क्लिंटन के आने से ज़ाहिर है हमारे ऊपर डायरेक्टली तो कोई इस तरह से नवाजिशात की बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप देखें, जो कि ओवरऑल आपको पता है कि एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का बंदा है, उनके मुकाबले में एक बेहतर उम्मीदवार हमारे ख्याल में हिलरी क्लिंटन हो सकती हैं। वो डायरेक्टली मुस्लिम्स को उस तरह से शायद हिट ना करें जिस तरह से कि हमें नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। सपोज डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज़ क्या रखनी चाहिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? बेसिकली पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के लिहाज से देखना चाहिए, और जो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वेदर इट इज़ डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन, पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को मोल्ड डाउन करना चाहिए, अपने डिप्लोमेट्स को उन पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वहाँ भेजना चाहिए, कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लाना चाहिए जो कि हमारी स्टेट पॉलिसीज़ को आगे प्रमोट कर सकें, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सेव कर सकें। सपोज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर मुसल्लत हो जाते हैं, और अमेरिका पर मुसल्लत होने के साथ साथ ज़ाहिर है वो सारी दुनिया पर मुसल्लत होंगे, क्या नुकसान है वर्ल्ड कम्युनिटी को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, तुमको और मुझे? डोनाल्ड ट्रंप इंसेन आदमी है, वो उसके अंदर मतलब उसकी जो बातें हैं वो एक मैच्योर इंसान की नहीं है, और मुझे नहीं पता कि कोई उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है। अगर वो आ गया तो दुनिया में सिर्फ तबाही होगी और कुछ नहीं, जिस किस्म का वो इंसान है। बराक ओबामा आए थे तो कौन सा दुनिया में उन्होंने बहुत सारे फल पौधे और फूल लगा दिए थे, उन्होंने भी तो अफ़गानिस्तान को जो है वो बम्बार्टमेंट का तोहफ़ा दिया, उन्होंने भी इराक़ पे चढ़ाई कर दी, उन्होंने भी जो है बहुत सारे ऐसे काम किए जो ऑब्जेक्शनेबल हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे क्यों हमारी तान आके टूट जाती है? असल में बात यह है कि ये तो अमेरिका की पॉलिसी है ही जो वो कुछ कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के शुरू से ख्यालात इंतहाई एंटी रिलीजन, मतलब वो एंटी है कुछ रिलीजन्स का, और वो बहुत रेसिस्ट भी है। तो उसके जो थॉट शुरू से ही हैं, अगर जब वो उसको पावर मिल जाएगी तो तब वो क्या करेगा वो फिर हम सोच भी नहीं सकते। वो हमें खौफ इस चीज़ का है कि वो क्या कर जाएगा। हिलरी क्लिंटन उनके मुकाबले में जो इंतखाब लड़ रही हैं, अगर वो मुंतखब हो गई तो पाकिस्तान को क्या हीरे मोती लाल दे देंगी जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे सकते? हीरे मोती लाल तो कोई कुछ भी नहीं देगा, बस ये है कि जब दो बुरे हैं तो उनमें से कौन कम बुरा है हमें वो रखना है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी वो अपने मुल्क के लिए ही है और वो हमारे कहीं ना कहीं खिलाफ ही होगी। इंडिया में एक नरेंद्र मोदी को भी झेल रहे हैं हम, अगर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप नामी कोई बला मुसल्लत कर भी दी जाती है तो हमारा क्या बिगड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी कौम इतने बेशऊर हैं कि वो ऐसे शख्स को मुंतखब कर लेंगे, क्योंकि ये अमेरिका की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि खातून उम्मीदवार जो हैं वो फ़ाइनल होकर आई हैं। हिलरी क्लिंटन पहले भी उम्मीदवार रह चुकी हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से, और वो बराक हुसैन ओबामा के मुकाबले में रह गई थी, और ये भी
डेमोक्रेट्स की ही रिवायत थी कि उसने पहली बार एक सिया फाम को अमरीकी सदारती उम्मीदवार बनाया, वो सदर बना, उसने अपनी 2 साल की 2 टर्म भी पूरी कर ली और अब उसी डेमोक्रेट्स ने एक नई रिवायत कायम की कि अमरीकी तारीख में पहली बार एक खातून उम्मीदवार आई हैं। हिलरी क्लिंटन की कामयाबियों से, उनकी अहलियत से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की नाअहली और नालायकी का दखल ज़्यादा है कि जिस तरह से वो गलती पर गलती कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुबात, फिर उनकी जो ख़वातीन के हवाले से वीडियोज़ आई और फिर उन्हें अमेरिका में जो दीगर अक़वाम है उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने तासुब का रवैया इख्तियार किया, तो इससे अमेरिका में उनकी मकबूलियत ख़त्म होती जा रही है। यहाँ तक कि ख़ुद उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह चुका कि मैं टैक्स डिफ़ॉल्टर हूँ और वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अमेरिका के लिए। आपके ख़्याल में इस किस्म के जो मौजूदात रूनुमा हो रहे हैं, हमें अपने दिल को किस हद तक मजबूत करना है, किन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए कि हमें मज़ीद क़ुव्वत हमारे दिलों को मिले और आगे हम क्या क्या देखने के लिए तैयार पाएँ अपने आप को? देखें, अगर अमेरिका में इंजीनियर्ड इलेक्शन का कोई तस्वुर है या कोई मौजज़ा हो सकता है तो फिर हमें इस मौजज़े के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो फैसले हुए हैं वो एक महदूद पैमाने पर पार्टी डिसीशंस हैं। लेकिन जब वोट डालेंगे, अमेरिका के 27 करोड़ अवाम जब वोट डालेंगे, वोटर्स अमेरिका के जब वोट डालेंगे, तो उनके लिए इंजीनियर्ड इलेक्शन मेरे ख्याल नहीं कि मुमकिन है। वो अवाम की राय होगी और अब तक जो अवाम की राय आई है उससे मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के सूरत में कोई मौजज़ा वहाँ पर रूनुमा होगा, क्योंकि अमेरिका में एक तरीक़ेकार ये है कि तज्ज़िये आते रहते हैं और जो उनके फ़ाइनल रिज़ल्ट्स होते हैं उसमें और प्री पोल जो एनालिसिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बमुश्किल 2 से 3% का डिफरेंस आता है। तो हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के जो अब तक के तज्ज़िये हैं और जो वोटिंग अवाम की तरफ से राय आ रही है तो उसमें तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर 21वीं सदी में कोई मौजज़ा हुआ, जिसका कि मैं नहीं समझता, मुझे इम्कान नहीं लगता। अच्छा बेटा, पहले इतना सब कुछ झेल रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? पहले ही हम लोग क्या कहते हैं इंडिया से आजकल हालात ख़राब चल रहे हैं हमारे। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा रेसिस्ट और नार्सिसिस्ट इंसान आ जाता है तो मज़ीद मुश्किलें हमें दरपेश होंगी, क्योंकि वैसे ही हमारे मतलब इंडिया से इतने मसले हैं और वो ऊपर से इंडिया को और सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना के ख़िलाफ़ जाने की बातें कर रहे हैं। तो मतलब हमारे लिए तो अलग, और हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन वहाँ अमेरिका में रह रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें पैदा होंगी। अच्छा, ये मुझे बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में हिलरी क्लिंटन भी जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। हिलरी क्लिंटन को तुम कैसा रेट करते हो एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप को? तो मैं ज़ीरो रेट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रेसिस्ट हद दर्जे के रेसिस्ट इंसान है जो अपनी क्या कहते हैं कैंपेन के दौरान अगर मुस्लिम ख़वातीन और लोगों को अपनी कैंपेन से निकाल सकते हैं कि इनको बाहर लेके जाएं, तो उनको तो मैं ज़ीरो रेट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। हिलरी क्लिंटन को भी मैं इतना अच्छा नहीं समझता, खैर, लेकिन वी डोंट हैव अ चॉइस, तो उनको फिर भी मैं 6 तक रेट करूँगा आउट ऑफ 10। हिलरी क्लिंटन के आ जाने के बाद अगर मुमकिन तौर पर उनका इंतखाब अमल में आ जाता है तो पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देखते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि हिलरी क्लिंटन क्या डूम और के तकाजे नहीं करेंगी? हिलरी क्लिंटन भी वैसे हमारे साथ इतनी कोई अच्छी ताल्लुकात नहीं रखेंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से वो फिर भी बेहतर रहेंगी हमारे लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ इंडिया में नरेंद्र मोदी और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अगर नाजिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान को कहाँ खड़े देख रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रच रहा है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। इससे उसने सहारा लिया है, वो पहले उसने ब्लैक अमेरिकन का लिया और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों का सहारा लिया, लोगों के ना इमोशनल एक तरीके से इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए कि हमें इनसे आज़ादी चाहिए। ये मुझे बताओ, डोनाल्ड ट्रंप अगर खुदा न खास्ता मुंतखब हो गया तो अमेरिका के जो मुसलमान हैं उनकी क्या दुर्गत बनते देख रहे हो? देखें, जो एक हेट्रेड होती है, जो एक नफरत होती है, जो डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज़ को लेके यूज़ कर रहा है, वो सबसे पहले उसने क्या करा है, उसने कॉमन सिटीजन्स, कॉमन जो लोग हैं उनके अंदर बीच में एक डिफरेंट स्पेस बना दिया कि भाई आप लोग ये जो अमेरिकन हैं, जो कि मुस्लिम अमेरिकन हैं, ये क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब जब वो लोग पावर में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, हमारे जैसे अभी रिसेंटली एक हमारे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, उनको उनके छोटे से बेटे को उनके दूसरे जो छोटे लड़के थे उन लोगों ने मारा,
जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी सोच को इतना ज़्यादा उनके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी एक दूसरे को मार रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कल को अगर वो लोग पावर में आ जाते हैं तो सबसे पहले यही होगा कि अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं उन लोगों को सबसे पहले उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ख़त्म किया जाएगा. सर, अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप नामी बला का नुज़ूल पाकिस्तान के लिए क्या असरात मुरतब करने वाला है आपके ख्याल में? देखें, ये हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही ना एक चीज़ को ना हाइट क्रिएट कर दी गई है. खैर एज सच मेरा ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो इससे पाकिस्तान पे यकीनन कुछ तो असरात मुरतब होंगे, लेकिन एज सच इतना नहीं कि जितना हम लोग इसको समझ रहे हैं. हो सकता है कि वो पाकिस्तान पे मज़ीद थोड़ा सा दहशतगर्दी के वाले से डू मोर का इल्ज़ाम लगाए, पाकिस्तान की कांग्रेस के अंदर इमदाद रोकने की कोशिश करे, क्योंकि बेसिकली रिपब्लिकन आज थोड़े से नियर टू कंजर्वेटिव होते हैं, ज़रा एक्सट्रीमिज़म करते हैं. लेकिन एक चीज़ ये भी रखे कि फ़ॉरेन पॉलिसी में या ख़ास तौर पे अमेरिका के एक फ़ॉरेन पॉलिसी वहाँ पे कोई भी आए, कहते हैं कि बड़ा मुहावरा आता है अमेरिका में गधा आए हाथी आए, वहाँ पे पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती. तो हम ये तवक्को करना कि वो आके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रैप कर देगा, पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करेगा, एज सच ऐसा नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले ही भारत नवाजी साबित करने पर मुसर हैं, तुले बैठे हैं कि इंडिया की खुशनुदी हासिल करेंगे और पाकिस्तान को साइड लाइन करेंगे. आपके ख्याल में ये सवाल तो कतई नज़र कि वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, आपके ख्याल में ये भारत नवाजी हमारे लिए कोई अलार्मिंग चीज़ नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने डरना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी तो भारत नवाजी में 2 कदम आगे बढ़ रहा है. ओबामा के मौजूदा रिपब्लिकन में वहाँ पे भी हो सकता है 1-2 कदम हो जाए, तो पाकिस्तान इस चीज़ के लिए मेरा ख्याल है कि तैयार है. हो सकता है फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका भी बहुत ज़्यादा इंडिया को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहता. उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसे है, वो ख़ास हद तक उसको रोकेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा वो उसको रोक सकता है. बाराक ओबामा का जो दोनों अदवार रहे हैं, भारत नवाजी के हवाले से और पाकिस्तान मुखालफत के हवाले से, डू मोर के हवाले से, वो हमारे लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि जो हम डोनाल्ड ट्रंप से डरने लगे? अमेरिका के अंदर देखें अभी भी एक वोट बैंक है जो एंटी मुस्लिम है ख़ास तौर पे, तो वो चाहता है कि थोड़ा सा नहीं, मेरा ख्याल अच्छा खासा थोड़े से वैल्यूज़ चेंज हुई है 9/11 के बाद से. कुछ ऐसे चीज़ें यूरोप के अंदर वाक़यात हो गए, तो एक परसेप्शन उसने बना दिया है कि एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म का. मेरा ख्याल है कि उसका ये सारा जो फोकस है एक जो है वो एंटी मुस्लिम वोट हासिल करना और अपने आप को वो करना, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं देने को अपनी आवाम को, क्या किसी बेस से. तो मेरा ख्याल है ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहा है. और जब मेरी अपनी ओपिनियन है, ये थोड़े से सियासी नारे लग रहे हैं. जब पावर में आएगा, पोजीशन में आएगा, तो हो सकता है उसको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगा कि वो पाकिस्तान पे इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता, ना करेगा. तो हमें नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको अफ़गानिस्तान से निकलना है. नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत किसका मुकद्दर होगी और इस सूरत में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है. नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए. फ़ी अमानिल्लाह.